भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट की जहां पर अलग अलग द्वीपों को जोड़ा गया है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीजे साजी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ क्या करते हैं? I'm the Chief General Manager for the Kochi Water Metro project. I am heading the Water Metro project. सर, मेट्रो तो हमने तमाम तरीके की सुन रखी हैं। दिल्ली मेट्रो है, कोच्चि मेट्रो है या लखनऊ मेट्रो है, लेकिन ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट वाटर मेट्रो क्या है ये? या ये मेट्रो का जैसा ही जाएगा, लेकिन ये इसका ये है कि ये पानी में जाएगा, बस इतना ही है. The whole that is being done for a metro system is being replicated in this particular thing. That is the speciality of this. It runs on time with the people's requirement. It won't wait for the people to fill and then go. It will go on a particular schedule without any problem, and it will bring in a reliability to the people. मैंने सुना है ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है। कितनी फेरीज हैं या कितनी बोट्स हैं और क्या कीमत उनकी पड़ी है? We have in this project about 38 terminals, and we have about 78 number of boats. The 78 number of boats consists of two types of boats. One is 100 passenger boat, which is about 23 numbers, and about 55 numbers of 50 passenger boat. They are running on electricity. It is the normal operation of the boat is being done with electricity. It has an additional generator capacity also, but generator is going to be used only in case of emergency, or when you need additional power for berthing or something like that, or additional power for during the peak hours. If you want to go faster, it can achieve about 10 nodes with the battery and the electrical system. So it can operate in electric, it can operate in generator alone, and it can operate both together. So it is there. It is not giving out any emissions. There is no carbon dioxide coming out of the boat. That is the speciality. That is why, and there is no emission coming out from this boat. That is why it is called a green kind of boat. सर, जो शुरुआती चीजें हैं उसमें कितनी जगहों को जोड़ा गया है? कौन कौन से आइलैंड के लिए आपकी फेरीज चलेंगी? हमारे प्रोजेक्ट में टोटल अबाउट 10 आइलैंड्स आर देयर. उसमें से हम लोग अभी कनेक्ट कर रहा है 3-4 आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है. दो रूट अभी चालू होना है. टुमारो 26th and 27th we are starting 2 routes. We have about 15 routes altogether planned with 76.2 kilometers when it completes all the 15 routes. तो यहाँ पर फुटफॉल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? We are expecting about 34,000 people per day. यानी एक बड़ी सर्विस है ये कहा जा सकता है। सर, एक और सवाल उठता है कि अगर हम इसकी बात करें तो जो आइलैंड हैं तो उन आइलैंड्स पे कितनी आबादी रहती है? This is in millions. About, see, we have about, in fact, if you connect, we are talking about 10 islands, because there are small islands in between also there, where there is no roads reached yet, and it's all beautiful to see, and it's unexploited island. So which means people can go and see. They don't have to go to the other tourist destination. They can see everything in Kochi itself. Only thing, it is not approachable at this point in time, which water metro boats are going to reach to those places, and people can see everything, the beauty, the bird sanctuary kind of thing. There are 150 different types of birds coming in Kochi. There is a place called Kadamakudi. We have a boat reaching there in that place too. So a very beautiful scenario. Tourism is going to be changed in Kochi. तो आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you very much. तो यहाँ पर आप समझिए ये कॉन्सेप्ट अपने आप में अनूठा है, क्योंकि तमाम ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर पहुँचना आसान नहीं है। और केरल जो टूरिज्म जो बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, वो निश्चित तौर पर इस मेट्रो का फ़ायदा उठाएंगे। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये टर्मिनल डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकटिंग की व्यवस्था है, और ये कोच्चि के अंदर की जगह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कोच्चि मेट्रो की जो वाटर मेट्रो जिसकी बात की जा रही है, उसकी चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग और अनूठा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से इसको डेवलप किया गया है, और यहाँ पर जिस तरीके से, जैसे दिल्ली मेट्रो में आप देखते होंगे कि अंदर जाने की व्यवस्था होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कार्ड और टोकन को यहाँ पर रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं बड़ी सुविधा डेवलप हुई है, और केरल के लिए ये खास तौर पर एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। यहाँ पर हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ थिंक ब्लू गो ग्रीन, यानी
जो नीला समंदर है उसमें कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का एक अलग तरीके का उपयोग है। और यहाँ पर आइए हम आपको और अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग टर्मिनल्स बनाए गए हैं जहाँ से ये वाटर मेट्रो के लिए व्यवस्था की गई है। और जो फेरीज हैं, फेरीज को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की फेरीज हैं और किस तरीके की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि तरह तरह की आइलैंड्स हैं जिनमें अगर वनस्पति की बात करें या हम कह सकते हैं फ्लोरा फाना की बात करें तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ हम आपको वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो टूरिज्म को एक बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं कि जो फेरीज हैं उन फेरीज को भी हम आपको दिखाएंगे, एक खास तरीके की व्यवस्था की गई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कोच्चि की वाटर मेट्रो किस तरह की है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन कोच्चि।